अखिल भारत रईतु संगम की जानिब से वजीर आला केसीआर को सर छोटो राम अवार्ड दिया गया है। हिंदुस्तान के किसानों की फलाह व बहबूद के तई वजीर आला केसीआर के जोश व जज्बे और रियासती किसानों को फराहम किए जा रहे इकदाम को देखते हुए अखिल भारत रईतु संगम ने वजीर आला केसीआर को अवार्ड देने का ऐलान किया है। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने केसीआर की जानिब से ये अवार्ड हासिल किया। इस मौके पर एस निरंजन रेड्डी ने शोबे ज़राअत के इस्तेहकाम के लिए केसीआर की जानिब से किए जा रहे इकदाम की सिताइश की। अखिल भारत रईतु संगम के नुमाइंदों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। गुजरा हरीश राव और के ईश्वर ने कोटला के हाजीपुरा में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए के ईश्वर ने कहा कि तेलंगाना के क़याम के बाद शोबे तिब और महकमे तिब ने काफी तरक्की की है और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है। इस तकरीब से वजीर सेहत ने भी खिताब करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना से पहले तेलंगाना में सिर्फ 3 डायलिसिस सेंटर थे, ताहम उनकी तादाद 122 हो चुकी है। हरीश राव का कहना है कि 81,000 सरकारी मुलाजिमतों के लिए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। वजीर सेहत ने बताया कि यूनिसेफ ने भी तेलंगाना की तिब्बी और सेहत खिदमात की सिताइश की है। इस इफ्तिताही तकरीब में मुकामी MLA विद्यासागर राव, जिला कलेक्टर, अवामी नुमाइंदों व दीगर ने शिरकत की। ఉద్యోగాలు ఇస్తుంటే అయ్యో గిన్ని ఉద్యోగాలా ఒక్కసారి ఇస్తారా గింతగానే నోటిఫికేషన్లా అని గుండెలు బాదుకొని ఇవాళ లోపల కుమిలిపోతున్నారు బీజేపీ నాయకులు. ఇయ్యకపోతే బాగుండు అనుకుంటున్నారు. ఇదా మీ విధానం? అర్థమైంది. మీ రంగేందో మీ నీతి ఏందో ఇవాళ తెలంగాణ జాతికి తెలంగాణ ప్రజలకు అర్థమైంది. సో ఏది ఏమైనా కొరుట్ల ఆసుపత్రికి 20 కోట్ల రూపాయలకి ఇవాళ మంజూరు చేసుకొని 100 పడకల ఆసుపత్రిగా మార్చుకోవడం చాలా సంతోషం. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు ఇంకా కొన్ని వసతులు కావాలన్నారు. వాటిని కూడా తప్పకుండా దృష్టి పెడతాం. ఇప్పటికే ఇటు డయాలసిస్ సెంటర్ కూడా ఇచ్చినాం. ఇవాళ డెంటల్ చైర్ కావాలంటే కూడా ఇచ్చినాం. కొత్త భవనం కూడా వేగంగా నిర్మాణం అవుతా ఉంది. మరిన్ని వసతులు, ఒక ICU సెంటర్ కానీ ఇంకా కొన్ని డాక్టర్ పోస్టులు నింపాలని, ఇంకా కొంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలని గౌరవ ఎమ్మెల్యే విద్యాసాగర్ రావు గారు కోరిండు. తప్పకుండా నూతన భవనం రెడీ కాగానే అవసరమైన అన్ని వసతులను కూడా ఈ కొరుట్ల ఆసుపత్రుల్లో పొందుపరిచి ఇంకా వైద్యాన్ని పేదలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి అన్ని రకాలుగా సహకారం అందిస్తాం. ఇవాళ 6 బస్తీ దవాఖానలు కూడా ఇచ్చినాం. मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना पर पंचायत फंड्स को तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल न करने का इल्जाम लगाया है। किशन रेड्डी का कहना है कि CM केसीआर के जिद्दी रवैये के सबब रियासत में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा सकती हैं। गरीबों के लिए फलाही स्कीमात पर अमल दरामद न करने पर तनकीद करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत की माशी पॉलिसियों के सबब रियासत का दिवालिया निकल चुका है। रियासत में ब्याज कायदीन पर मनमानी तरीके से वसाइल का इस्तेसाल करने का इल्जाम लगाते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर एक डिक्टेटर की तरह हुकूमत कर रहे हैं। అది ఆల్మోస్ట్ సుమారు 214 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి ఇంకా మిగిలింది రావాలి. వాళ్ళు ఆ రకంగా క్లెయిమ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి, అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సాగును బట్టి విడుదల చేస్తాము. ఇంకా ఎక్కువ అంటే కూడా దీనికంటే ఎక్కువ కాకుండా ఇంకెంత ఎక్కువ సాగు చేస్తే అంత ఇవ్వడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వము సిద్ధంగా ఉంది. కానీ ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది, కిషన్ రెడ్డి చెప్పింది చాలా అబద్ధం. 1 రూపాయి కూడా మాకు రాలేదు, 1 కాగితం అన్న చూపించండి అన్నారు. మరి నేను ఈరోజు దానికి సంబంధించినటువంటి అలాట్మెంట్ లెటర్ కూడా ఈరోజు మీకు ఇస్తున్నాను. కాబట్టి ఈ రకంగా చిన్న చిన్న విషయాలు నేను సదుద్దేశంతో చెప్పాను, కానీ ఒక్కరి భాషంతో వాళ్ళు విమర్శించేటువంటి అలవాటు చేస్తా ఉన్నారు. నేను ఎవరిని విమర్శిస్తూ కాదు, తెలంగాణ రైతులు దీంట్లో ముందుకు రావాలి. ఆయిల్ ఫామ్లో ఇంకా ముందుకు వచ్చినట్లయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం అందిస్తుంది. ఈ రకంగా మనకు 15% ల్యాండ్ ఆయిల్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీని ద్వారా రైతులకు మేలు జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయం నేను పాజిటివ్గా చెప్తే, హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆయన ఢిల్లీలో ఉండి ఏదో చెప్తున్నాడు, మరి ఇది వాస్తవం కాదు అనే విషయము, ఒక కాగితం ఉంటే చూపించండి అనే విషయం మాట్లాడడం జరిగింది. ఎందుకు ఈ రకంగా ప్రతి విషయంలో కూడా రాజకీయం చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కాలేదు. वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने जिले कामारेड्डी में नए मास्टर प्लान की मनसूखी की मांग को लेकर जारी किसानों के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कामारेड्डी में किसान गुज़िश्ता कई दिनों से मास्टर प्लान में उनकी अराजियात ज़ाया हो जाने के खौफ से एहतजाज कर रहे हैं। IT मिनिस्टर KTR ने जिले कामारेड्डी के एडिशनल कलेक्टर से इस सूरत हाल के बारे में तफसीलात हासिल की हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि सिर्फ मास्टर प्लान का
ड्राफ्ट पेश किया गया है, ताहम हुकूमत का फैसला अवाम की मर्जी के मुताबिक ही रहेगा। KTR ने मौजूदा ड्राफ्ट पर एतराज़ होने पर उसमें तब्दीलियां करने का ऐलान किया है और काय के दरख्वास्तों और एतराज़ात पर गौर किया जाएगा। अराजी छीन जाने के खौफ से किसान के खुदकुशी करने के वाक़े पर BRS कारगुजार सदर ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत किसानों को परेशान नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान को अवाम के मुखालिफ नहीं बल्कि अवाम के हक में तैयार किया जाएगा। కామారెడ్డిలో ఒక 500 ఎకరాలు ఏదో ఇండస్ట్రియల్ జోన్లో పడింది అని చెప్పి అక్కడేదో కొంతమంది ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. నా విజ్ఞప్తి మున్సిపల్ కమిషనర్లతో ACLBలతో ఏమంటే, ఈ గవర్నమెంట్ ఎవరినో ఇబ్బంది పెడతానికో ఇంకోటి దానికో మనం లేము. వీఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ పీపుల్, వీఆర్ హియర్ టు ఎన్ష్యూర్ స్ట్రక్చర్డ్ ప్లాన్డ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద సిటీస్ టౌన్స్ ఇన్ తెలంగాణ హ్యాపెన్స్. దానిలో భాగంగా మాస్టర్ ప్లాన్లు తయారు చేస్తున్నాం. మాస్టర్ ప్లాన్లు అర్థవంతంగా మనం ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉండాలి తప్ప అననుకూలంగా ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఉండాలి అని నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు. మీకు ఎక్కడైనా ప్రజల నుంచి అభ్యంతరాలు ఏమైనా వస్తే మీరు అవన్నింటిని కూడా క్రోడీకరించి వెంటనే DTCPతో మాట్లాడండి, DMAతో మాట్లాడండి. మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవడానికి, అబ్జెక్షన్స్ కాల్ ఫర్ చేయడానికి చాలా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికే ప్రాసెస్ ఉంది. ఆ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వండి. ఎక్కడైనా లోకల్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కానీ పబ్లిక్ కానీ మీకు వచ్చి ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ ఇస్తే వాటిని సమగ్రంగా సమీక్షించండి. ఎవరు ఒత్తిడి చేసినా పట్టించుకోవద్దు. అల్టిమేట్గా ఏది కరెక్టో అదే చేద్దాము. సో కామారెడ్డి లాంటి ఉదంతాలు ఇంకెక్కడైనా ఉంటే ఈ ప్రాసెస్లో, మాస్టర్ ప్లాన్లు ప్రిపేర్ చేసే ప్రాసెస్లో అన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకోండి. वजीर पंचायत राज व देही तरक्की ई दयाकर राव ने कंटी वेलुगु प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मुतहद होकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया है। हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में एक इजलास में शिरकत करते हुए ई दयाकर राव ने वरंगल और हनमकुंडा अजला में कंटी वेलुगु प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों से हर गाँव में इस प्रोग्राम को मरबूत और मुनज़्ज़म करने की तजवीज़ पेश की है। ओहदेदारों को कैंप के लिए तमाम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने और वक्तन फौक्तन इन कैंप्स की निगरानी करने का भी रियासती वजीर ने मशवरा दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि देही इलाकों में कंटी वेलुगु को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी सरपंच और सेक्रेटरीज पर आयद है। ई दयाकर राव ने वज़ीर आला KCR की जानिब से शुरू करदा इस स्कीम से मुस्तफीद होने का आवाम को मशवरा दिया है। రిక్రూట్మెంట్ చేసి దీన్ని సక్సెస్ చేస్తున్నారు. దీన్ని మీరు ప్రజాప్రతినిధులు, నేను ఇక్కడికి వచ్చిన ఎంపీపీలను, డెప్యూటీసీలను, ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యేలు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్స్, మేయర్ గారు, సరే ఎమ్మెల్సీ ఎంపీలు కూడా మీరు కోఆర్డినేషన్ చేసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే ప్రతి ప్రోగ్రాం ప్రారంభోత్సవం చేసినందుకు అధికారులు కోఆర్డినేషన్ చేస్తారు. ప్రతి క్యాంపు విజిట్ చేయాలి. वजीर बराए अफजाइश मवेशियां तलसानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नौ मुंतखब चेयरमैन का ओहदा संभालने पर डॉक्टर समुद्रा वेणुगोपालचारी को मुबारकबाद पेश की है। TSIDC दफ्तर में मुनक्किद तकरीब में तलसानी श्रीनिवास यादव ने शिरकत की और नौ मुंतखब चेयरमैन को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद भी दी। आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के जारी करदा अहकामात के मुताबिक V गोपालचारी को 2 साल के लिए चेयरमैन तेलंगाना स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुकर्रर किया गया है, जिसके बाद उन्होंने आज यानी जुमेरात के रोज अपना ओहदा संभाल लिया है। रियासती वजीर बराए खेल व सियाहत सखाफत डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी सदर नशीन डॉक्टर अंजनया गौड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन डॉक्टर E अंजना गौड़ ने आज अपना ओहदा संभाल लिया है। लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िद की गई तकरीब में श्रीनिवास गौड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। तकरीब को मुखातिब करते हुए वजीर बराए खेल व सियाहत ने रियासत के खिलाड़ियों को 2% रिजर्वेशन फराहम करने का इंकशाफ किया और बताया कि बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों जैसे निका ज़रीन और ईशा सिंह को 2 करोड़ रुपये नकद इनाम के अलावा बंजारा हिल्स में मकानात के लिए प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जल्द ही स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाएगी। इस तकरीब में MP रामू, MLC के कविता, बंडा प्रकाश, गवर्नमेंट व्हिप बालका सुमन, MLAs क्रांति किरण, मनोहर रेड्डी, साबिक MLAs बुजरा व दीगर ने शिरकत करते हुए अंजना गौड़ को मुबारकबाद पेश की है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से एससी और कांस्टेबल्स उम्मीदवारों को इंसाफ देने का मुतालबा करते हुए प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश की गई है। बीजेवाईएम कारकुनान ने हाईकोर्ट के अहकामात नाफिज करने की मांग की है और सवालिया पर्चे में गलत सवालात शामिल करने पर बरहमी जाहिर की है। बरहम कारकुनान ने प्रगति भवन का मुहासरा करना चाहा, ताहम पुलिस ने उनकी कोशिशें नाकाम बनाते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जिसके सबब वहां माहौल कशीदा देखा गया। आपको याद दिला दें कि एससी और कांस्टेबल उम्मीदवार 1 माह से हुकूमत से इंसाफ की मांग करते हुए एहतजाज कर रहे हैं और मुख्तलिफ ओहदेदारों को नुमाइंदगियां भी सौंप चुके हैं। हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल मौसूल न होने पर एहतजाजियों ने गहरे दुख का इजहार किया है और ये वाज़ेह किया है कि उनके मसले को हल करने तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। वजीर बराए अफजाइश मवेशियां तलसानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नौमुंतखब चेयरमैन का ओहदा संभालने पर डॉक्टर समुद्रा वेणुगोपालचारी को मुबारकबाद पेश की है। TSIDC दफ्तर में मुनक्किद तकरीब में तलसानी श्रीनिवास यादव ने शिरकत की और नौमुंतखब चेयरमैन को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद भी दी। आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के जारी करदा अहकामात के मुताबिक वी गोपालचारी को 2 साल के लिए चेयरमैन तेलंगाना स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुकर्रर किया गया है, जिसके बाद उन्होंने आज यानी जुमेरात के रोज अपना ओहदा संभाल लिया है। 4 बजे के बाद आ जाऊंगी, जब उनका पूरा सर्जरी खत्म होकर आ जाएंगे ना, तब आके मैं भी देखूंगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर से बात कर लेंगे, LOC का इंतजाम कर लेंगे। आप 1 पैसे का भी टेंशन मत लो, जरा भाभी को बोलिए हिम्मत रखिए, ठीक है। बच्ची कैसी है? बच्ची को भी मार लो, बच्चा भी ठीक है? जी जी, जितना भी है कोई कसर मत छोड़िए, अच्छे से इलाज करवा दीजिए। जो भी है मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। आप 1 रुपये का भी टेंशन मत लो, भाभी को बोल दीजिए, जरा हिम्मत से रहिए, दुआ करिए बस आप। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद अली शबीर ने KCR दौरे हुकूमत में 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को लेकर सवाल उठाए हैं। गांधी भवन में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान साबिक़ वज़ीर तालीम ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने मुसलमानों की तरक्की के लिए कोई इक़दामात नहीं किए, हत्ता के 12% रिजर्वेशन पर भी अमल नहीं किया गया। TPCC रहनुमा ने याद दहानी करवाई कि कई कमेटियों की जानिब से मुसलमानों को दलितों के मुकाबले ज्यादा पसमानदा कहा गया, इसके बावजूद भी तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी पर अमल नहीं किया गया। उनका कहना है कि मुसलमानों की तरक्की कांग्रेस के फराहम किए गए रिजर्वेशन के सबब हुई है और मेडिकल काउंसिल में भी मुसलमानों को रिजर्वेशन कांग्रेस की देन है। मोहम्मद अली शबीर का कहना है कि कामयाब तलबा को असनादात के उसूल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिला कामारेड्डी में जारी किसानों के एहतजाज का जिक्र करते हुए कांग्रेस कायद ने कहा कि किसानों की बड़ी तादाद सड़कों पर उतरी हुई है, एहतजाज कर रही है, ताहम हुकूमत कोई इक़दामात नहीं कर रही है। उन्होंने हुकूमत पर गरीबों को मख्तस की गई अराजियात हथियाने का इल्ज़ाम लगाया है। गुज़िश्ता रोज़ खुदकुशी करने वाले किसान के अफराद ख़ानदान को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का कांग्रेस रहनुमा ने मुतालबा किया है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जफर जावेद साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और मैं खुशी से आज ऐलान कर रहा हूं, क्योंकि 3 दिन पहले 2022 और 23 मेडिकल काउंसिल एकेडमिक ईयर में जो 3 दिन पहले ये काउंसलिंग ख़त्म हुई, इस काउंसलिंग में मुस्लिम एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड लड़कों को 934 तलबा को आज MBBS में एडमिशन मिला। 934, ये मामूली फिगर नहीं है, तेलंगाना का है। आंध्रा में भी इसी तरीके से 600 के ऊपर आंध्रा में भी मिले हैं। तो मैं ब्रेकअप भी आपके सामने बताने वाला हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मुस्लिम तलबा को सीट्स मिले हैं तो वो 600 है, लेकिन खाली एक तेलंगाना में 934 है। और आंध्र और तेलंगाना जो हमारे दौर का 4% रिजर्वेशन से अगर हिसाब करेंगे तो 1600 तलबा हमारे डॉक्टर बन रहे हैं, 1600। आज ये 2004 से ये शुरू हुआ। 2004 से अगर हम
देखें तो 20,000 बच्चे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA, लॉ, इस तरीके से आला तालीम में हमारे 20 लाख बच्चे हमारे तालीम याफ्ता बने। ये कोई मामूली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा परमानेंट काम करती है और आगे जनरेशन को काम आए जैसा काम करती है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने तेलंगाना यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट के दूसरी कांग्रेस के पोस्टर का इजरा किया है। MLA कैंप ऑफिस में TWJ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट युगानंद और जनरल सेक्रेटरी Y नवीन की क़यादत में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर युगानंद ने सहाफ़ती बिरादरी से 8 जनवरी से पटन चेरू के JMR कन्वेंशन हॉल में मुनक़िद होने वाली दूसरी कांग्रेस में बड़ी तादाद में शिरकत करने की ख्वाहिश की है। TWJ के ट्रेजरर दशरथ, नायब सदर तुकाराम, श्रीकांत यादव व दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रियासती वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी ने मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम के ज़िमन में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास से मुखातिब होते हुए तलासानी ने कहा कि रियासत के सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट स्कूलों की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी और हुकूमत का मकसद सरकारी स्कूलों में भी खुशगवार माहौल पैदा करना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR के हुक्म पर मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम का आगाज किया गया है ताकि सरकारी स्कूलों के तलबा को भी तमाम तरह सहूलियात फराहम की जा सकें। सिनेमाटोग्राफी मिनिस्टर के मुताबिक पहले मरहले में रियासत भर में 9,123 स्कूलों में तरक्याती काम शुरू किए गए हैं, जबकि हैदराबाद जिले के 239 स्कूलों में तरक्याती काम का आगाज हुआ है। मासाब टैंक में वाक़ रियासती वजीर के दफ्तर में मुनक़िद किए गए इजलास में मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोते श्रीलता, महकमा तालीम के डायरेक्टर देवसेना, MLC सुरभि वानी देवी, MLA दानम नागेंदर, AIMIM अरकान असम्बली कौसम मोहिउद्दीन, मौजम खान व दीगर ने हिस्सा लिया। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने असातिज़ा को तालीम के साथ साथ तलबा में अखलाक़ी इक़्तिदार और खुद एतमादी पैदा करने की जिम्मेदारी अदा करने की तजवीज़ पेश की है। जिललगुड़ा में चला लिंगारेड्डी गवर्नमेंट स्कूल में मुनक़िद TML मेले का वज़ीर तालीम ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने सरकारी स्कूलों में वाज़ह तब्दीली लाने के लिए तालीमी निज़ाम में तब्दीलियाँ की हैं, जबकि अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद से रियासती हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा को मियारी तालीम फराहम करने की कोशिशें कर रही हैं। सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला ने महकमा तालीम में असातिज़ा के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने एक अच्छा सिस्टम कायम करने और तमाम मसाइल को हल करने का मशवरा दिया है। ప్రభుత్వ పాఠశాల చదువుతున్న పిల్లలు ఎక్కడైనా కూడా పోటీ పడేటట్టు తీర్చిదిద్దాలన్న సంకల్పం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. స్కూళ్ళు బాగు చేయాలంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగు చేసుకోవడమే కాదు, పిల్లల్లో నైపుణ్యాన్ని పెంచాలి. ఎక్కడ పోయినా తెలంగాణ బిడ్డలు పోటీ పడేటట్టు తీర్చిదిద్దాలన్న సంకల్పం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. ఈరోజు గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, మన ప్రభుత్వ పాఠశాలను బాగు చేసుకున్నాం. అల్టిమేట్గా సంకల్పం ఏంటంటే మన పిల్లలు ఎక్కడ పోయినా పోటీ పడాలనే సంకల్పంతో ఈరోజు ముందుకు పోతున్న సందర్భంలో ఇంతకుముందు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన ఊరు మన బడి, మన బస్తీ మన బడి, దీంట్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. రెండవది తొలి మెట్టు కార్యక్రమం ద్వారా పిల్లల నైపుణ్యాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. 10th క్లాస్లో కూడా మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చే ప్రయత్నం చేయడం ఒకటి. మూడవది పేరెంట్స్ని కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ పిల్లల మానసిక స్థితి కానీ పిల్లలు ఏ విధంగా చదువుతున్నారు, పిల్లలకి ఏ విధంగా సహకారం అవసరం అనేది కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి పేరెంట్స్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ పెట్టుకుంటూ ఇలా కొత్త ఒరవడితోని చదువు చెప్పాలనే ప్రయత్నంలో మీరందరూ కూడా భాగస్వామైనందుకు మీకు అందరికీ మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీ అందరు కూడా ఇవన్నీ కూడా మీరు కొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టి మీకు అందరికీ కూడా। शहर हैदराबाद में 51वें हिंद केसरी मुकाबलों का LB नगर स्टेडियम में इनेकाद अमल में आ रहा है। इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जानिब से हिंद केसरी 2022 मुकाबले 5 जनवरी तक 8 जनवरी मुनक़िद हो रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से खिलाड़ियों की बड़ी तादाद इन मुकाबलों में हिस्सा ले रही है। कांग्रेस रहनुमा व साबिक़ रुकन पार्लिमान अंजन कुमार यादव ने मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा अफराद से इन मुकाबलों में हिस्सा लेने की ख्वाहिश की है और इन मुकाबलों के इनेकाद से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई हैं। मेरा नाम नफीस सिंह राठी है और मैं इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज से हैदराबाद में हिंद केसरी की कुश्तियों का आयोजन होने जा रहा है और आज वेट होंगे और कल से कंपटीशन शुरू हो जाएंगे।
और मुझे खुशी इस बात की है कि 1958 में सबसे पहले हिंद केसरी का आयोजन किया गया और वो हैदराबाद में किया गया। आज 51वां हिंद केसरी टाइटल की कुश्तियाँ और वेट कैटेगरी की कुश्तियाँ चैंपियनशिप, स्टेट चैंपियनशिप राष्ट्रीय चैंपियनशिप होने जा रही है, वो भी हैदराबाद में हो रही है। मैं आभार प्रकट करता हूँ। वक्फ बोर्ड ने दरगाह हजरत असदुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान और मस्जिद नेक नामपुर की अराजियात को लैंड ग्रैबर्स और समाज दुश्मन अनासिर के चुंगल से छुड़ाने में कामयाबी हासिल कर ली है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद नसीरुल्लाह खान की हिदायत पर अमीर अहमद असिस्टेंट सेक्रेटरी की सरबराही में सुपरिटेंडेंट एम ए सलीम, वक्फ इंस्पेक्टर ऑडिटर अब्दुल खादर व दीगर पर मुश्तमिल एक टीम ने जिले रंगारेड्डी के नारसिंगी पुलिस हदूद में वाक़ दरगाह हजरत असदुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान और मस्जिद नेक नामपुर की अराजियात पर किए गए नाजायज कब्जों को बर्खास्त करवाने, गैर समाजी अनासिर की जानिब से गैर कानूनी तौर पर बनाए गए गणेश पंडाल को हटाने में कामयाबी हासिल की है। वक्फ बोर्ड अमला और महकमा पुलिस के ताउन से की गई बरवक्त कार्रवाई ने दरगाह और मस्जिद के जिम्मेदारान और मुसलमानों को राहत पहुंचाई है और वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। वक्फ बोर्ड ओहदेदारों के शानदार इक़दामात की हर गोशे से तारीफें की जा रही हैं। कुछ अरसे से वक्फ बोर्ड मुख्तलिफ मसाइल और तनाज़ात को लेकर सुर्खियों में रहा है। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगियों पर कई मरतबा उंगलियां भी उठाई गई, ताहम आज वक्फ बोर्ड ओहदेदारों ने लैंड ग्रैबर से अराजियात वापस हासिल करते हुए वक्फ बोर्ड की मुतासिरा छवि को बेहतर बनाने का काम किया है और अवाम के दिलों में ये उम्मीद जाग चुकी है कि मुतहर्रिक वक्फ बोर्ड सदर नशीन मसीउल्लाह खान की क़यादत में लैंड ग्रैबरों से वक्फ अराजियात को बचाने का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अगर वक्फ बोर्ड ओहदेदारान इसी तरह से इक़दामात करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब माशी तौर पर पसमानदा सारे मुसलमानों के घरों में असली घी के चिराग जलाए जाएंगे। उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद नसीरुल्लाह खान इसी तरह वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करेंगे और वक्फ बोर्ड अमला उनके साथ भरपूर ताउन करेगा। कौमी कमीशन बराए अक़लियत की रुकन सैयद शहजादी ने आज तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन का दौरा किया है। सैयद शहजादी ने अपने दौरे के मौके पर अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ और MD कांति वेस्ले से भी मुलाकात की है। उन्होंने रियासत के अक़लियतों को कर्ज़जात फराहम करने वाली स्कीम और इससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। माइनॉरिटीज़ नेशनल कमीशन मेंबर ने हार्ड कॉपीज़ दाखिल करवाने के लिए आने वाले अफराद से बातचीत भी की है। बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने मौलाना आज़ाद फेलोशिप स्कीम को बंद कर देने से मुताल्लिक़ पूछे जाने वाले सवाल पर इंकशाफ किया है कि स्कीम को बंद नहीं किया गया है बल्कि इसमें मजीद तब्दीलियां करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि साल 2014 के बाद से बजट की खती रकम अक़लियतों पर खर्च की गई है और साल 2014 से पहले किसी भी हुकूमत ने अक़लियतों के लिए इस तरह के इक़दामात नहीं किए थे। आज हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD और हमारे चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ साहब के साथ हमारी एक मीटिंग थी। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की ओर से एक मीटिंग कंडक्ट की है जो माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास करके क्या क्या स्कीमियात इम्प्लीमेंटेशन हो रहा और ख़ास करके हमारे जो हम CM साहब ने 50 करोड़ दिया वो कैसे अप्लाई करना, उनको कैसा सेलेक्ट कर रहे हैं और क्या प्रोग्राम्स है माइनॉरिटीज़ के लिए, इस विषय पर ख़ास करके चर्चा चली है। अभी तक तो काम ठीक है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा, यही उम्मीद रखती हूँ। और हमारे चेयरमैन साहब साथ में मीटिंग में चेयरमैन साहब भी थे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के और उनका भी बहुत अच्छा आज मैंने व्यू लिया तो उनके तरफ से पूरी अच्छी कोशिश हो रही है। तो ये कोशिश हमारे चले और कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो हमारे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी स्कीमात है जो लोगों तक पहुँचे, ग्रास रूट में पहुँचे, जिसको जैसे हमारे वज़ीर आज़म ने 15 पॉइंट प्रोग्राम है जो ख़ास करके माइनॉरिटी को लेकर बनाया है। तो ऐसे सारे स्कीमात हैं सेंट्रल और स्टेट के जो माइनॉरिटी तक के लिए पहुँचे, इसके लिए सब कोशिश कर रहे हैं और हम भी पूरी हमारी ओर से कोशिश। CPM पार्टी के ज़ेर एहतमाम कड़पा में 7 जनवरी से पार्टी कैडर के लिए तरबियती क्लासेस का इनेकाद अमल में आ रहा है। CPM सिटी सेक्रेटरी राम मोहन, सिटी सेक्रेटरी चंद्रा रेड्डी, सिटी कमेटी मेंबर फारूक हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्टी कैडर के लिए तरबियती क्लासेस मुनक्किद होंगी ताकि वो
अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर हुक्मरान जमातों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जद्दोजहद के लिए तैयार हो सके। CPM कायदीन ने मरकजी और रियासती हुकूमतों की उन तमाम पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार किया है जिसके सबब गुर्बत, इफलास और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से कचरा टैक्स, आबी बिल और बिजली के स्मार्ट मीटर्स के नाम पर कड़पा शहरियों पर इजाफी बोझ डालने की कोशिशों पर नुक्ताचीनी करते हुए CPM कायदीन ने अवामी तंजीमों के नुमाइंदों और अवाम से इन तरबियती क्लासेस में शिरकत करने की ख्वाहिश की है। CPM పార్టీ కడప నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 7వ తేదీన ఒక్కరోజు రాజకీయ శిక్షణ తరగతులు కడప నగరంలోని పాత బస్టాండ్లో నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. కేంద్రంలో, రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న విధానాల కారణంగా సామాన్య ప్రజానికం మీద పెద్ద ఎత్తున భారాలు పడుతూ ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు ప్రపంచ బ్యాంక్ ఆదేశిత సంస్కరణలని అమలు చేయడానికి భయపడేటువంటి పాలకులు నేడు వాటిని యథేచ్ఛగా అమలు చేయడానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అన్నిటికీ మీటర్లు బిగించి ప్రజానీకాన్ని ముక్కుపిండి వసూలు చేసేటువంటి సాంప్రదాయానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఇప్పటికే ప్రజానీకం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగా బలహీనపడిపోయింది. నిరుద్యోగం బాగా పెరుగుతూ ఉంది. ఆకలి, దారిద్ర్యం బాగా పెరిగాయి. తినడానికి సరిగా తిండి దొరకనటువంటి పరిస్థితిలో ప్రజానీకం తీవ్ర కష్టాలు పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో CPM పార్టీ చేయాల్సినటువంటి పోరాటాలను, కర్తవ్యాలను రూపొందించి जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।